Hello students, this is online session for class 8th. As you know, I have started online classes for 8th and in the last video I had discussed physical properties of metals and non-metals, and today I am going to discuss something new topic, and it is chemical properties of metals as well as non-metals. So, let us start. Chemical properties of metals. First one is formation of ions. Actually, metals have tendency to form positive ions, means metals पॉजिटिव आयन बनाते हैं, एंड these positive ions are called cations. Okay. So, mostly all metals form positive ions. How positive ions are formed? Let us see. Suppose A is metal. Okay. So, when it loses electron, it forms positive ion like this. A is any metal, and suppose it is an atom. So, when it loses one electron, it forms positive ion. So, this is positive ion. Some metals may lose 2 electrons or 3 electrons. So, by losing of electrons, metals form positive ions. You can note it. How positive ions are formed? These are formed by losing of electrons. Means कि जब कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो वो पॉजिटिव आयन बनाता है, ठीक है, एंड दीज पॉजिटिव आयंस आर कॉल्ड cations. So, in this case this is cation. So, because metals have tendency to form positive ions, so we can say metals are electropositive in nature. Metals are electropositive in nature. इसका मतलब क्या हुआ कि मेटल्स पॉजिटिव आयंस बनाते हैं, तो मेटल्स की जो टेंडेंसी है दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ठीक है. तो इस तरह से कोई भी मेटल, यानी मोस्टली जितने भी मेटल्स हैं वो इलेक्ट्रॉन को लूज करके, और इलेक्ट्रॉन कहाँ से लूज होगा? दे लूज इलेक्ट्रॉन फ्रॉम देयर आउटर मोस्ट शेल, मीन्स अपनी आउटर मोस्ट शेल में से
इलेक्ट्रॉन लूज करके और पॉजिटिव आयन बनाते हैं। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी है रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स। रिएक्टिविटी ऑफ metals. Actually, there is a list of metals which is arranged in the order of decreasing reactivity, and this list is called reactivity series. So, what is reactivity series? First question is, what is reactivity series? Metals are arranged in the order of decreasing reactivity or activity, you can say. This series is called reactivity series. We can write like this: metals are arranged in the order of decreasing activity. Okay, and this is called reactivity series. ठीक है, कि जितने भी मेटल्स हैं उनको उनकी एक लिस्ट बनाई गई है जो कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में सेट की गई है। ठीक है, तो इस लिस्ट को ही रिएक्टिविटी सीरीज कहते हैं। ठीक है, और ये लिस्ट आपकी टेक्स्ट बुक में 6.3 टेबल में दिया गया है। आप टेक्स्ट बुक में 6.3 टेबल देख सकते हो। इस लिस्ट में जो मेटल सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा वो सबसे ऊपर लिखा गया है, और जो मेटल सबसे कम रिएक्टिव होगा वो सबसे नीचे लिखा गया है, क्योंकि ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। ठीक है, लाइक दिस: पोटेशियम, सोडियम, इस तरह से ये लिस्ट बनी हुई है। और सबसे नीचे जाने पर गोल्ड, और उससे भी नीचे प्लैटिनम। ठीक है, ये अगर हम इसको सिंबल में लिखें तो AU एंड PT। ठीक है, तो सबसे टॉपर साइड में जो मेटल है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, और जो बॉटम साइड में जो मेटल्स हैं वो कम रिएक्टिव हैं। जैसे गोल्ड, प्लैटिनम, these metals are toward the bottom side. It means these metals are very low reactive, means ये मेटल बहुत कम रिएक्टिव हैं। ठीक है, तो आप 6.3 टेबल से रिएक्टिविटी सीरीज को अपनी नोटबुक में लिख करके उसको याद कर लीजिए, so that you can very easily say which metal is more reactive and which metal is less reactive. अगर आप उसी रिएक्टिविटी सीरीज में आप देखिए तो जिंक
और कॉपर. कॉपर, it is written toward below side of zinc, means जिंक के काफी नीचे कॉपर लिखा हुआ है और उस लिस्ट में जिंक कॉपर से काफी ऊपर है, ऐसा आप कह सकते हो. ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में जिंक कॉपर से ऊपर है, इट मीन्स जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर. ठीक है, नाउ टेक स्क्रीनशॉट ऑफ इट. In the last video, I have received a question, and this question was, why non-metals do not give shine? तो इसका जवाब ये है क्योंकि मेटल्स क्यों शाइन करते हैं और नॉन मेटल्स क्यों नहीं करते. तो एक्चुअली मेटल्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर जब लाइट पड़ती है तो ये एक्टिवेटेड स्टेट में आ जाते हैं और जिसकी वजह से ये लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं. ठीक है, जबकि नॉन मेटल के केस में नॉन मेटल्स, कोई भी नॉन मेटल हो, नॉन मेटल्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं. तो अगर इनके ऊपर लाइट पड़ती है तो ये लाइट रिफ्लेक्ट नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से वो कोई शाइनिंग नहीं करते हैं. ठीक है, नाउ अगली केमिकल प्रॉपर्टी है रिएक्शन विद ऑक्सीजन. मीन्स हाउ मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन. तो कुछ ऐसे मेटल्स हैं जो कि ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, तो दे वेरी क्विकली रिएक्ट विद ऑक्सीजन. जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम. These are reactive metal. When these metals react with oxygen, what happens? सोडियम जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो ये क्या बनाएगा? सोडियम ऑक्साइड बना लेता है. इट इज Na2O. दिस इज सोडियम ऑक्साइड. पोटेशियम सिमिलरली इट फॉर्म्स K2O, पोटेशियम ऑक्साइड. कैल्शियम इट फॉर्म्स CaO, calcium oxide. Magnesium, when react with oxygen, it forms magnesium oxide. ठीक है. इसी तरह से एल्यूमिनियम when react with oxygen, it forms aluminium oxide.
तो वी कैन कंक्लूड फ्रॉम these reactions कि when metals react with oxygen they form metal oxide. Actually these oxides are metal oxides. So इसको हम इस तरह भी समझ सकते हैं कि जब कोई भी मेटल ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो ये क्या बनाएगा, ये मेटल ऑक्साइड फॉर्म करेगा, मेटल ऑक्साइड, ठीक है। और मेटल ऑक्साइड का नेचर कैसा होता है, मेटल ऑक्साइड दे आर बेसिक इन नेचर, यानी मेटल ऑक्साइड का जो नेचर होता है वो बेसिक होता है। अब बेसिक नेचर ये कैसे पता लगेगा कि मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, तो हम इसके लिए ये कर सकते हैं कि जैसे किसी भी मेटल ऑक्साइड को जो कि वाटर में आसानी से डिसॉल्व हो सकते हैं, तो अगर मेटल ऑक्साइड को जैसे सोडियम ऑक्साइड है, ठीक है, अगर इसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये बना लेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन, ठीक है। तो यहां पर ये मेटल ऑक्साइड मीन सोडियम ऑक्साइड वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा और डिसॉल्व होकर मेटल हाइड्रोक्साइड फॉर्म कर लेगा, ठीक है। तो ये जो मेटल हाइड्रोक्साइड है इसमें यानी कि NaOH, इट इज मेटल हाइड्रोक्साइड, तो इसमें इस सॉल्यूशन में जब ब्लू लिटमस पेपर से टेस्ट किया जाए, रेड लिटमस से टेस्ट किया जाएगा, मीन्स NaOH सॉल्यूशन में रेड लिटमस पेपर डिप करेंगे तो इट टर्न्स इनटू ब्लू, ये ब्लू में चेंज हो जाता है। तो व्हेन रेड लिटमस चेंजेस टू ब्लू द अननोन सैंपल और अननोन सॉल्यूशन इज बेसिक इन नेचर, ठीक है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं क्योंकि जो मेटल ऑक्साइड है उसका जो सॉल्यूशन बना वाटर में, अगर उसमें रेड लिटमस पेपर डिप किया और वो ब्लू कलर दे रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि मेटल ऑक्साइड का जो नेचर है वो बेसिक नेचर होता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस कि मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, ठीक है। एंड द सॉल्यूशन of metal oxide in water, it is also basic in nature. So it turns red litmus paper into blue, ठीक है। Now अगली प्रॉपर्टी है रिएक्शन ऑफ मेटल with water. So let us see how metals react with water. There are some metals which can react very easily with cold water. Cold water here means normal water, but there are some metals which react with hot water. They cannot react with cold water. And there are some metals which do not react with cold water or hot water,
दे ओनली कैन रिएक्ट विद स्टीम। ठीक है, तो मैं एग्जाम्पल से इस बात को समझ सकता हूं कि जैसे सोडियम और पोटेशियम, कैल्शियम, these metals are very reactive metal and these metals can react with cold water, means normal water. So sodium plus water it forms NaOH plus H2, it forms KOH plus H2. ठीक है, सोडियम, पोटेशियम, these metals when react with water they form sodium hydroxide or potassium hydroxide along with the release of हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ ये भी ध्यान देना है कि यहाँ हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है और इससे NaOH, KOH ये सब क्या है? दीज आर मेटल हाइड्रोक्साइड। इसको हम ये समझ सकते हैं कि दीज आर मेटल हाइड्रोक्साइड्स। ठीक है, तो वाटर के साथ रिएक्शन करके ये मेटल हाइड्रोक्साइड बना रहा है और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। ठीक है, सो दीज मेटल्स लाइक सोडियम, पोटेशियम दे विगोरसली रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, मीन्स कोल्ड वाटर के साथ बहुत तेजी से रिएक्शन करते हैं। कैल्शियम इज another metal, it also react with cold water, बस ये बहुत स्लो रिएक्शन करता है वाटर के साथ एंड इट फॉर्म्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम ये सभी मेटल्स कोल्ड वाटर से बहुत आसानी से रिएक्शन कर लेते हैं, तुरंत रिएक्शन कर लेते हैं और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। ठीक है, नाउ टेक स्क्रीनशॉट ऑफ इट। Okay students, this class is over and we will discuss some more reactions like reaction of metal with hot water or steam and some other chemical properties in the next video. Thank you students.